We are getting more breaking news on this story. This time, Union Minister Jitin Ram Majhi has responded to the bridge collapse situation in the state of Bihar, and he goes on to say that it's the heavy rainfall that is responsible for the bridge collapses in Bihar. समाचार मिलिए, हम लोग ये जानते हैं बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है जी, इसलिए पुल पे गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। Let me take this across to my colleague Arunima is joining us on the broadcast. Arunima, that is a foot in mouth statement to make. The heavy rainfall, but actually in the last fortnight or so, these series of bridge collapse incidents have been reported from Bihar, 10 on last count. And, monsoon has hit only in the last 7 or 8 days. So the first incident of bridge collapse actually happened before monsoon hit. If you speak to people on the ground, it's very clear that they suspect either inferior quality of material being used, alluding to some corrupt practices, or the structural engineering itself being faulty. So there is a structural audit that has been ordered. Bihar government is asking for a report. For the union minister to come out and say this is because of heavy rainfall is definitely an embarrassment. Right. Also, Arunima, I was reading somewhere that overzealous distilling may be the reason for these bridge collapses. We're talking about 10 such incident in the last 15 days. What are you learning about that? Yes, there are, multiple theories doing the rounds, but what is very clear is that the bridges, when they were built, the suspicion is that the quality of material used, saria or the iron rods that are used, the suspicion is that perhaps the right diameter of those rods were not utilized. Sand to concrete ratio, perhaps that was not correct either. So the suspicion is that the money that was allocated for the construction of these bridges, it could have been siphoned off, and the bridges might be of inferior quality. But we'll know exactly only once the structural audit is completed. Meanwhile, politics is continuing. Yes, the Bharatiya Janata Party JDU alliance in the dock, they are turning around and saying that Tejasvi Yadav was part of the government when all these bridges were built. Right. Arunima, thank you so much for that. We also now joined on the broadcast by Mr. Shakti Yadav of the RJD. यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितिन राम मांझी साहब कह रहे हैं कि बरसात की वजह से ये ब्रिजेस गिर रही हैं। जितिन राम मांझी भारत सरकार में मंत्री हैं, उम्र के पड़ाव पर है, वो क्या बोलेगी, उनकी बातों को गंभीरता से तो कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रिज का जो लगातार जल में समाधि ले रहा है ब्रिज यहाँ बिहार के अंदर में, बारिश उस समय तो बहुत हुआ भी नहीं था। बारिश तो 2 दिनों से हो रही, 10 ब्रिज लगभग 10 से 11 दर्जन भर लगभग बिहार में सेतु जल समाधि ले चुका है जी। इस संस्थागत भ्रष्टाचार के इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता है। आप भी इतने लंबे समय से एंकरिंग कर रहे होंगे, किसी राज्य के अंदर में इतने लार्ज स्केल पर कहीं पुल अगर जल समाधि ले रहा हो तो आपको उदाहरण के रूप में बताइए। ठोसी दलीलें हो सकती है। ये भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार की जो चर्चा लगातार हम लोग पहले भी करते रहे। अब उतना ही नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कई ऐसे ब्रिज जो नए निर्माण हुए हैं, सिंगल पाए पे हुए हैं, उनकी अवधि बहुत लंबी नहीं है। वही एक बड़ा हादसा का संकेत होगा आने वाले कल में, क्योंकि इन लोगों ने एक नाइंसाफी की है क्वालिटी के साथ। क्वालिटी कंप्रोमाइज किया गया है, और क्वालिटी जब कंप्रोमाइज करिएगा, डेप्थ किसी भी ब्रिज का जो डेप्थ है उसमें आप कम बेस कर लेंगे, खाएंगे। जहाँ पर 50 फीट ले जाना है वहां पर आप 30 ले जाओगे, जहाँ 30 ले जाना है 15 ले जाओगे, तो स्वाभाविक तौर पर पुल को जल समाधि लेना ही है जी। बस शक्ति यादव जी, ये भी आपकी तरफ आप एक्यूजेशन पॉइंट कर रहे हैं अभी बिहार गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन जब आपकी सरकार बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार के साथ थी, तब क्यों नहीं ये बातें सामने आई? ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। इसका जवाब में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके नेता अब जाके कह रहे हैं, आप पॉइंट फिंगर्स कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, शायद आप एक चीज भूल जाते हैं। हम 17 महीना पार्ट में रहे सरकार में इनके अंदर, और 17 महीना ग्रामीण कार्य डिपार्टमेंट मेरे पास रहे। 17 महीना का अवधि बहुत ही अल्प अवधि होता है। एक छोटा सा डीपीआर तैयार करने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। अब ये उसको प्रशासनिक से लेकर के काम होने में तो 17 महीना में कोई पुल का निर्माण नहीं हो सकता। बेस बन सकता है, पुल का तो निर्माण नहीं हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हम पर उन्होंने कहा, हमने पहले भी कहा कि पुल मेंटेनेंस
पॉलिसी लानी होगी। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी जब तक नहीं लाओगे, रख रखाव कौन करेगा? अब सवाल है कि पहले से ही क्रैक है तो उसको पहले आप प्रिकॉशन लो। आपने वो काम नहीं किया। आखिर अल्टीमेटली चूंकि हेड ऑफ द कैबिनेट कौन है? चीफ मिनिस्टर है। निर्णय उनको लेने होते हैं। अल्टीमेटली पावर कमेटी से जाता है कैबिनेट में, कैबिनेट की चर्चा होती है, उनको लेने होते हैं। लेकिन मुख्य सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी 17 वर्षों तक लगातार साथ रही है और वो पथ निर्माण विभाग में लगातार उनके ही मंत्री रहे। हमको तो मौका छोटा छोटा कालखंडों में मिला, लेकिन जब इतनी बात तो स्पष्ट है ना, बिहार की जनता देख रही है ना कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल एनडीए के घर में अगर जन्मोत्सव भी नहीं मने किसी कारण से, किसी के कारण से अगर नहीं मने जन्मोत्सव उसके घर में, तो अभी आरोप राजद वाले पे लग जाता है कि जन्मोत्सव मेरे घर में नहीं इसलिए मन रहा है कि राजद जो है इसमें साजिश कर रही है। तो ये तो आपका अपनी विफलताओं को आप कैसे पोजीशन पर ला सकते हो? हम तो आईना पहले भी दिखाया है कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार से नहीं, हर सेक्टर में है। सीमांचल में आपने 4 दिन पहले निर्माण के ग्रामीण कार्य में आपने ट्रांसफर पोस्टिंग किया, अपने बड़ा भ्रष्टाचार को जन्म दिया। अब जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उसको उठा करके फिर सीमांचल में ही कर देते हो, बड़े होगा ही करते हो। और आप जिसकी चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ, जिनके भाई ही इस भ्रष्टाचार के सबसे बड़े वहां पर संस्थागत रहे हैं, इनका ऑडियो से लेकर कई चीजें वायरल रही है, वो मंत्री दलील दे रहा है जो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। लंबे समय तक वहां रह करके पदाधिकारी का भी है और जिम्मेदार रहा है, वो व्यक्ति दलील दे रहा है। जी शक्ति यादव जी, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है स्ट्रक्चरल ऑडिट की, और किस तरह से आवाज उठाएगा आरजेडी इस मामले में? देखिए, हम हर फ्रंट पर, मैं कहता हूँ अगर मेरी सरकार होती तो आप ठीक है, आप दिखा रहे हैं, मेरी सरकार होती तो सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है उसको हेडलाइन की खबर होती, इस पर डिबेट होता, इस पर सरकार की किरकिरी बजती, इस पर एंकर लोग बाजा बजाने में पीछे नहीं हटते, परिवार तक पहुंच जाते। लेकिन अब बताइए कि इससे बड़ा कोई प्रमाण अगर संस्थागत भ्रष्टाचार के अगर कोई है, नीचे से ऊपर तक कमीशन बने, अनलिमिटेड, जहां पर आप बिलो जाकर के टेंडर लेते हो, अनलिमिटेड का प्रावधान है। अब 20% पर कोई ब्रिज जाकर लेगा, अब तो 25-20% में कमीशन देगा, तो अब 50% में काम कैसे होगा बिहार किसी भी राज्य के अंदर में? काम क्वालिटी कहाँ से आएगी? Alright, thank you so much. Shakti Yadav ji, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Let me go back to my colleague Arunima, who continues to be with us on the broadcast. Arunima, you heard a word from the RJD. While they are washing their hands off of the corruption and the commission taking that Mr. Shakti Yadav was talking about, he's mentioning it was only 18 months of association with the JDU, and hence they cannot be questioned about this entire the fiasco there in Bihar. See, the question for the JDU if we combine in Bihar is that if they suspect anyone of corruption, they have the police, their government is here at the center as well. CBI is the nodal agency under the Prevention of Corruption Act. So the question that has been asked of the ruling combined in Bihar is, what is stopping you from going ahead and arresting those whom you suspect to be behind this? The same question was put to them when the NEET fiasco broke out. Even then, the BJP, Deputy Chief Minister raised fingers at Tejasvi Yadav and said that his aides were responsible. So the same question was to them then also, that it have proof, and if you are suspecting, why just make political speeches? Why not go ahead and carry out the arrest?